Welcome to Husain Chemistry. In this video, we will discuss few important questions and also the level of AMU entrance exam. And here is one important notice that we started our new batch from toward onward. Those candidates who are interested to join our classes may contact us and also mail to husainchemistry@gmail.com. In this classes we mostly discuss the paper 1 part and also discuss few important parts of paper 2. Okay, and today in this demo class we will discuss microscopy. As the microscopy is an optical instrument that use a lens or combined lens to produce an image of small object. The electron microscopy was made by the Max Knoll and the Ernest Ruska in 1931 in Berlin, Germany. It is important to learn the name or the who got the awarded Nobel Prize or important dates as AMU asks about them. Okay. The first microscope was invented by the Z. Jensen, and a compound microscope has the how many lenses? As we know that two lenses mostly present in compound microscope. Then here is few important questions. Just suppose what is the father of microscopy and microbiology? The answer is Leeuwenhoek. Okay, answer is Leeuwenhoek. Now, first microscope was invented by the F. Jensen and Z. Jensen. Okay. And next question is the maximum resolution of the light microscope is. Resolution power inversely proportional to the wavelength. जिसका wavelength सबसे कम उसका resolution power highest. ठीक है. The minimum wavelength is 0.2 micrometer. ठीक है. When light passes from the medium of the greater refractive index, light क्या होता है? Slow down and bend toward the normal. What is the which of the following is not a type of the light microscope? As we know that the bright field microscope, fluorescence microscope, and phase contrast microscope are the type of the light microscope, but transmission electron microscope is a type of electron microscope, so it would be the answer. Okay. Now a new question is, what is the total magnification when you observing a ant or any object via compound microscope with 40x objective lens? ठीक है. Option here mention is 200x, 4000x or 400x and 40x. Simple. What is the formula of total maximum magnification? या total magnification is equal to होता है I power of I lens मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. तो आई का हम वी कंसिडर करते हैं 10x या 15x मोस्टली. ठीक है. एंड मल्टीप्लाई बाय 40x इज इक्वल टू दी 400x. द आंसर शुड बी दी 400x. ओके. नाउ दी व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? इक्वल टू होता है 0.61 मल्टीप्लाई वेवलेंथ अपॉन n न्यूमेरिकल अपर्चर और n मल्टीप्लाई साइन थीटा. ठीक है. Here is lambda is wavelength and n is the refractive index and sin alpha is angular aperture. ठीक है. Resolving power is equal to inversely proportional to the limit of resolution होता है. If the you increase the wavelength, that means कि resolution power भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. Limit of resolution. But resolution power वो क्या हो जाएगा? Inversely proportional होता है. ठीक है. तो wavelength should be minimum. You want to maximum resolution then. Now new question is the most important property of any microscope is the resolution. Which one of the following is the wavelength should be the used to achieve the best resolution using the light microscope with the lens having the numerical aperture is 1.4. As we know that wavelength should be the minimum. The wavelength should be minimum. So as mentioned here, 450 is the minimum value from the given one. So answer is the 450. Now next question, to achieve the best resolution using the fluorescence microscopy, which combination would be the best? Now as we discussed in previous slide, wavelength should be the minimum. 2 wavelength is minimum and refractive index should be the higher. Okay. So maximum index is this and also angle should be higher. ठीक है.
तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप रिजोल्यूशन इज डी, ऑलवेज मेंशन सेम, ठीक है, ये फॉर्मूला मेंशन है। नाउ डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल सही बात है, एंड इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, नो, ठीक है, यूज द ऑयल दैट हैज द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही बात है, ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप डज नॉट रिक्वायर एनी प्री ट्रीटमेंट प्रोसीजर बिफोर इमेजिंग, ठीक है, TEM, SAM and confocal, these all require time to warm up, but optical microscope there is no requirement of any warm up or time pre treatment procedure, ठीक है। The first electromagnetic lens was developed by which scientist? Answer is Hans Bosch, ठीक है। Now एज earlier mentioned that कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इसमें हम पेपर 1 को पूरा कवर करते हैं एंड पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। दोज कैंडिडेट चाहते हैं कि हमसे ज्वाइन करना, वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। पेपर 2 में भी इम्पोर्टेंट मार्क्स लगा दिए जाते हैं, बट आवर टोटली फोकस होता है कि पेपर 1 को किस तरीके से बहुत अच्छा करा जाए। अगर आप पेपर 1 में ही हाईएस्ट मार्क अचीव कर लेते हो, 30+ मार्क्स ले लेते हो, तो पेपर बी में आपको सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। एमयू का एंट्रेंस पेपर इतना टफ बनाया जाता है कि बच्चे 40 मार्क्स भी नहीं ले पाते हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। 2 पेपर होते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। तो जो बच्चे 40 मार्क्स लेकर आ जाता है, दैट मीन्स कि 50% मार्क्स लेकर आ जाता है, वो क्वालिफाई कर जाता है फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है, अगर वो प्रेजेंटेशन देता है उसके बाद वो इनरोल हो जाता है पीएचडी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ और क्वेश्चन भी मेंशन करे हुए हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हैविंग द 2 आईपीस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप? बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप बोलते हो, ठीक। अर्नेस्ट एबे डेवलप एन इक्वेशन ऑफ रिजोल्यूशन इन किसमें, इन 1870 में उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट यही है कि हम अपने लेक्चर्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, हम अपना पेपर 1 का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। और आज भी हमने माइक्रोस्कोपी के ऊपर एक डेमो क्लास लिया है, और अगर जो स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए हमारा फ़ोन नंबर पर भी कॉल किया जा सकता है, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, और मेल भी कर सकते हैं, जैसे कि उसमें मेंशन है husainchemistry@gmail.com, ठीक है, husainchemistry@gmail.com, ठीक है। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एमयू का एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, और इसमें हम 5 माइनर टेस्ट लेते हैं और 3 मेजर टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पूरा पेपर 1, जिसमें चाहे वो स्टैटिक्स हो, माइक्रोस्कोपी हो, चाहे वो आपकी टेक्निक्स का रिलेटेड पोर्शन हो, या इकोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, वो सब कवर किया जाता है, डीपली कवर किया जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी बेस्ट क्लासेस लेते हैं और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल सके, ठीक है। लास्ट ईयर भी जो टॉपर था वो भी हमारा ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम एक यहाँ पर थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट्स अपना कम टाइम में अपना सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए जेआरएफ क्वालिफाई करना। जेआरएफ क्वालिफाई है तो आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, बट जेआरएफ अगर आपके पास नहीं है और एमयू को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है कि यू हैव टू स्कोर दी हाईएस्ट मार्क्स इन योर एंट्रेंस पेपर, ठीक है। आप मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आओगे फॉर क्वालिफाई मार्क्स के लिए, बट अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, यू इजीली स्कोर दी मोर देन 50 मार्क्स, इजीली स्कोर कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा पेपर या एग्ज़ाम नहीं है जो एमयू का आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी तैयारी कराई जाती है यहाँ पे कि आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे हमें जुड़ना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर हमारी क्लासेस को लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, फीस स्ट्रक्चर में ये है, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनसे हम 2500 चार्ज करते हैं 1 मंथ का, ठीक है, क्योंकि 1 महीने ही आपके पास बचा है एग्ज़ाम के लिए, और 2000 है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले हमसे क्लासेस ली हैं, बट किसी हाल में उनको या तो सुपरवाइज़र चेंज करना है, या फिर वो दूसरी टारगेट कर रहे हैं, या फिर वो दोबारा से कोचिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये नया चार्ज रहेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू।